हाँ चलो। Economic causes. The most important reason for the popular discontent was the economic exploitation by the British. The economic exploitation took the following terms. First, exploitation of economic resources. Agricultural India was made an economic colony to serve the interests of industrial England. India was forced to export at cheaper rates raw materials like raw cotton and raw silk that the British industries needed urgently. Plantation products like indigo and tea and food grains, which were in short supply in Britain. India was made to accept ready-made British goods either duty-free or at nominal duty rates, while Indian products were subjected to high import duties in England. The Indian handmade goods were unable to compete with the cheaper machine-made British products. These ruined the Indian industry, deprived the artisans of their income, and reduced the avenues of employment for labor. On the other hand, export of raw materials and food grains deprived India of her agricultural surplus and raised the prices of raw materials. Thus, the थोड़ा ऊपर करना. हाँ, thus the change Thus, the in change in the nature of India's trade became an instrument for exploiting India's resources. Second, drain of wealth. Till the Battle of Plassey 1757, the European traders used to bring gold into India to buy Indian cotton and silk. However, after the conquest of Bengal, the British stopped getting gold to India. They began to purchase raw materials for their industries in England from the surplus revenues of Bengal and profits from the duty-free inland trade. Thus began the process of plundering India's raw materials, resources, and wealth by Britain. The transfer of wealth from India to England, for which India got no proportionate wealth, economic return, is called the drain of wealth. The drain included the salaries, incomes, and savings of Englishmen. The British expenditure in India on the purchase of military goods, office establishment, interest on debts, unnecessary expenditure on the army, etc. ओके, वेट वेट, थैंक यू। काफ़ी। अभी इसमें पहले क्या था, इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन किया बराबर, तो पहले उन्होंने एग्रीकल्चरल इंडिया वॉज मेड एन इकोनॉमिक कॉलोनी टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल इंग्लैंड। तो अपना जितना भी, हम तो एग्रीकल्चर बेस्ड थे और हमारे पास कोई फैक्ट्री नहीं था। 100% वी यूज टू मतलब ग्रो कर रहे थे कुछ ना कुछ प्लांट, मतलब आपके सब भी ग्रेन्स एंड एवरीथिंग बराबर, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, और कमर्शियल कुछ भी नहीं था वैसा। तो अभी ये लोग ने क्या कहा किया, अपनी इंडिया को ऐसा एक हब बना दिया, वहां से वो सब चीज ले लेके इंग्लैंड लेके जाने का, रेडीमेड बनाने का मटेरियल, और बाद में वापस इंडिया में आके बेचने का। मतलब पूरी तरह हमारा एक्सप्लोर करना चालू किया इन एवरी टर्म्स। इंडिया वॉज फोर्स टू एक्सपोर्ट, देख वो भी क्या है, एट चीपर रेट रॉ मटेरियल लाइक रॉ कॉटन एंड रॉ सिल्क। तो जो कपड़ा बना, वो टाइम पे सबसे बड़ा इंडस्ट्री था कपड़े का। तो वो लोग क्या करते थे, यहाँ से अपने को बोलेंगे कॉटन वहाँ पे बेचने का। अच्छा, वो भी क्या मालूम है, ऐसा नहीं है कि हम जो प्राइस बोले, अभी मेरी चीज है तो मैं मेरा प्राइस डिसाइड नहीं कर सकता, वो लोग बोले तुमको 10 रुपए में देना पड़ेगा, लाइक दैट। मतलब और दूसरा ऑप्शन भी नहीं रखते थे। उन्होंने सब बाकी सब ट्रेड भी बंद कर दिए थे दूसरे कंट्री के साथ। तो यू हैव ओनली वन बायर हु इज ब्रिटिशर्स। तो उनकी कंडीशन के हिसाब से हम लोग को चलना पड़ता था। तो लिखा भी है देखो, फोर्स टू एक्सपोर्ट, सस्ते में देना पड़ेगा, चीपर रेट, रॉ मटेरियल लाइक रॉ कॉटन सिल्क। जो सिल्क के कपड़े बनते थे, सिल्क की साड़ी है, वो बहुत ज़्यादा फेमस थी पहले के, दैट ब्रिटिश इंडस्ट्री नीडेड अर्जेंटली। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये अलावा प्लांटेशन प्रोडक्ट लाइक इंडिगो एंड टी, इंडिगो इज अ प्लांट, वहाँ से कलर है, जो डाई है ना, हर एक कपड़े को कलर लगता है, जो उसको डाई बोलते हैं बेसिकली। तो डाई, ये प्लांट इंडिगो करके प्लांट है, वहाँ से वो बनता है वो डाई। तो ये लोग क्या बोला मालूम है, कंपलसरी तुम इंडिगो प्लांट उगाओ, नहीं तो आपको, मतलब दे डोंट अलाउ अस टू ग्रो एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम द इंडिगो। और क्यों, कि उनको चाहिए। तो हम लोग ने, हमारे फार्मर्स ने बोला कि भाई हम लोग को खाने के वांदे हैं, हम लोग वी डोंट हैव व्हीट, कॉर्न, मकई, ये सब राइस, ये सब नहीं है हमारे पास, तो हम वो ग्रो करें। तो बोला नहीं नहीं, वो नहीं करना है हमको, तो कॉटन के लिए कपड़ा मैन्युफैक्चर पूरे वर्ल्ड में करना है एक्सपोर्ट, तो हमको कलर चाहिए। तो आप इंडिगो प्लांट ही उगाना पड़ेगा जहाँ पे उनकी ज़रूरत है, वही
बोला हम लोग भूखे मर रहे, वी डोंट हैव ईट टू फूड, खाने के लिए है ही नहीं। बोला नहीं नहीं, वो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लाइक दैट जबरदस्ती करके हमको इंडिगो उगाना पड़ता था। इंडिया वॉज मेड टू एक्सेप्ट रेडीमेड ब्रिटिश गुड्स आइदर ड्यूटी फ्री, और उनको क्या करेगा, कपड़ा बनाया फिर वहाँ पे मैन्युफैक्चर किया ब्रिटिश में, मतलब यूएस इंग्लैंड में, और यहाँ पे लेके आए और उसमें कोई चार्ज नहीं लगाया, कोई टैक्स नहीं लगाया, तो अपनी कॉस्ट, अपने वो कपड़े की कॉस्ट क्या हो गई, कम है कंपेरेटिवली। और बाकी सब जो है, और दूसरा क्या किया ये लोग, हम लोग कुछ चीज वहां से, मतलब यहाँ से वहां गई, मतलब इंडिया से कुछ बन के वहां पे जा रही है, तो वहां पे वो ज्यादा ड्यूटी, ज्यादा चार्ज लेते थे, ज्यादा टैक्स लेते थे। यहाँ पे प्रोडक्ट आई तो कोई टैक्स नहीं, अपनी प्रोडक्ट वहां पे गई तो ह्यूज टैक्स, तो वी आर नॉट एबल टू सर्वाइव। हम खुद भी कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे तो भी हमारा कॉस्ट मैच नहीं हो रहा है। द इंडियन हैंडमेड गुड्स वेयर अनेबल टू कॉम्पीट, देखो लिखा है ना, अभी हम लोग कुछ बना रहे, ठीक है, क्योंकि उनका, उन्होंने सस्ते में रॉ मटेरियल लिया, गया ब्रिटिश, ब्रिटेन में से बन के प्रोडक्ट इधर आई, आने के टाइम भी कोई टैक्स नहीं लगाया, तो अल्टीमेटली उनकी कॉस्ट कम है। और हम जो बना रहे, प्लस हमारा फैक्ट्री नहीं है, हैंडमेड है, एक कपड़ा बनाने में 4 दिन लगा, मैन पावर लग रहे हैं, और आप ब्रिटिश से बन के आ रही है जो चीज़ है, सस्ते में बन रही है, देन वी कैन नॉट कॉम्पीट, ऐसा हो गया, तो हम लोग बेरोजगार हो गए, सब इंडियन इंडस्ट्री खत्म हो गई। चीपर मशीन मेड ब्रिटिश प्रोडक्ट जो कॉम्पीट नहीं कर पाया, सस्ता एंड मशीन मेड, मशीन में एक साथ में 100 शर्ट बन गए एक दिन में, और हमको बनाने में 2 दिन लगा, कैसे परवड़ेगा अपने को। दिस रूल इन द इंडियन इंडस्ट्री डिप्राइव्ड ऑफ आर्टिशियन, जो भी काम करते थे, इनकम एंड रिड्यूस द एवेन्यू ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर लेबर, सब मजदूर जो भी है खत्म हो गए, खाने के वांदे हो गए, प्रोडक्ट कोई खरीद ही नहीं रहा आपकी प्रोडक्ट, व्हाट विल डू। On the other hand, export of raw material and food grains deprived India of her agriculture surplus and raised the price of raw material। और क्या हुआ, पहले हम लोग जो बनाते थे, हमारा बहुत, मतलब वीट कितना ज्यादा, मतलब जितना कंजप्शन है उससे ज्यादा वीट प्रोड्यूस होता था, राइस जितना कंजप्शन है उससे 3 टाइम्स प्रोड्यूस, तो वो हम क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे पहले, सरप्लस जो रहेगा ना एक्स्ट्रा, 100 किलो चाहिए, 300 किलो उगाया हमने, तो 200 किलो हम बेचते थे बाहर, उससे अपने को फॉरेन रेवेन्यू आता था। लेकिन हमने अभी क्या हुआ, कुछ उगाने को अलाउ ही नहीं कर रहे, बोला नहीं तुमको इंडिगो ही उगाना है, तो प्रॉब्लम हो गया, खाने के वांदे हो गए, वी डोंट एबल टू, मतलब हमारे पास खाना है ही नहीं, फूड ही नहीं बचा, फूड बल्कि भाव बढ़ गया। फूड ग्रेन डिप्राइव्ड इंडिया ऑफ आवर एग्रीकल्चर सरप्लस एंड रेज द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल। सो द चेंज इन द नेचर ऑफ इंडियाज ट्रेड बिकम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लोइटिंग इंडियाज रिसोर्स। तो हम लोग जो पहले काम करते थे वो पूरा हमारा सब्जेक्ट ही बदल दिया, हमको कुछ अलग करने के लिए अलाउ, मतलब वो फोर्स कर रहे, हमारा जो क्या बोलते हैं बेसिक थिंग था इंडिया का, एग्रीकल्चर, वही उन्होंने बंद कर दिया, खत्म कर दिया यहाँ पे। ड्रेन ऑफ वेल्थ, इसने बोला टिल बैटल ऑफ पैलेसी द यूरोपियन ट्रेडर यूज टू ब्रिंग गोल्ड। पहले क्या था, जब ये बैटल हुआ उसके पहले ये लोग क्या करते थे, गोल्ड लेके आते थे यहाँ पे, और यहाँ पे से इंडिया का कॉटन सिल्क खरीदते थे, पहले ऐसा करते थे जब बिफोर द ईस्ट इंडिया कंपनी, बरोबर है, तो हमारे पास एटलीस्ट गोल्ड आता था, क्योंकि मैंने बेचा ब्रिटिशर्स को, समझो 100 किलो कॉटन बेचा, ठीक है, तो वो विल गिव मी सम गोल्ड, बरोबर है। अभी उन्होंने क्या किया, आफ्टर ये जीत लिया बंगाल को, देन उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश स्टॉप गेटिंग गोल्ड इनटू इंडिया। उन्होंने, सिंपल बात है, बंगाल को जीता, बंगाल के लोगों से, पब्लिक से जो पैसा रेवेन्यू क्रिएट किया, टैक्स लिया, उससे ही रॉ मटेरियल खरीद रहा है, तो अल्टीमेटली हमारे पैसे से ही हमारा चीज खरीद रहा है, तो खत्म हो गई ना कहानी, मतलब यू डोंट गेट एनी फॉरेन मनी, ऐसा हो गया प्रॉब्लम। They began to purchase raw material for their industry in England from the surplus revenue of Bengal and profit from duty free inland trade। तो जो भी टैक्स जो कलेक्ट कर रहे बंगाल में से, उससे ही वो लोग खरीद रहे रॉ मटेरियल, और उससे वापस कमा रहे, वापस उससे रॉ मटेरियल खरीद, तो उनका तो पैसा बढ़ रहा है, और हमारे पास हमारा ही पैसा से वो लोग रॉ मटेरियल खरीद रहे। सो बिगन टू प्रोसेस ऑफ प्लंडरिंग, प्लंडरिंग मतलब लूटना, लूटना चालू होगा इंडियंस रॉ मटेरियल, resources and wealth by Britain। The transfer of wealth from India to England, उन्होंने सिंपल बात है, देखो कमाया सब पैसा ब्रिटेन में ट्रांसफर कर, जो प्रॉफिट है ना वो वहाँ पे जाता है, यहाँ पे यूज नहीं हो रहा है, तो ले पैसा अपना खलास हो रहा है, जितना भी पैसा है अपना खत्म हो रहा है ग्रेजुअली। तो क्या हुआ, इंग्लैंड फ्रॉम विच इंडिया गॉट नो प्रोपोर्शनेट इकोनॉमिक रिटर्न, मतलब हमको जो जो इंडिया के, समझो इंडिया ने रॉ मटेरियल परचेज मतलब प्रोड्यूस किया है,
यहाँ ही फैक्ट्री डाला होता लेस से, तो उसके मजदूरों को पैसा काम मिलता था, फैक्ट्री में जो काम कर रहे उनके पास पैसा आता था, वो पैसा वापस वो लोग खरीदते थे कुछ चीज सामान, तो वापस अपने ही लोगों को मिलेगा, तो वो सर्कल में जाता है, वो पैसा रूटीन मतलब रोटेशन में आएगा। अभी ऐसा नहीं हो रहा है, पैसा कमा रहे, टैक्स लिया बराबर, रॉ मटेरियल खरीदा वही पैसे से, कपड़ा उधर बेचा, कपड़ा लेके आए, वो जो प्रॉफिट हुआ वापस फॉरेन में गया, वो लोग सब पैसा कमा रहे हैं और यहाँ पे यूटिलाइज नहीं हो रहा है, तो उसको बोलेंगे ड्रेन ऑफ वेल्थ, हम पूछ सकते हैं। ठीक है, द ड्रेन इंक्लूडेड क्या था, सैलरी, इनकम एंड सेविंग ऑफ इंग्लिशमैन, द ब्रिटिश एक्सपेंडिचर इन इंडिया ऑन द परचेज ऑफ मिलिट्री गुड्स। तो ये जो पैसा था कहाँ पे यूज हो रहा है, जो हमारे से टैक्स लिया, प्रॉफिट कमा रहे हैं, वो सब हम वो लोग क्या यूज कर रहे हैं, वो देखो आप, इंडियन वेलफेयर के लिए यूज होना चाहिए था बराबर, कोई राशन देना है गरीब लोगों को, या बिल्डिंग बनाना है, रोड बनाना है, शेल्टर बनाना है, हॉस्पिटल बनानी है, कुछ नहीं वहां पे नहीं डाल रहे, कहाँ पे डाल रहे, वो लोग ब्रिटिशर्स की सैलरी, उनको पैसा, इनकम, सेविंग ऑफ इंग्लिशमैन, ब्रिटिश एक्सपेंडिचर इन इंडिया ऑन परचेज ऑफ मिलिट्री गुड्स। तो देखो ये सब जगह पे वो यूज कर रहा है, जो कि मीनिंग नहीं है, इधर खाने के प्रॉब्लम है, आप मिलिट्री में पैसा डाल रहे हो, ऑफिस एस्टेब्लिशमेंट, उनकी खुद की ऑफिस बना रहे वो लोग, इंटरेस्ट ऑन डेट, तो उन्हें कुछ कहाँ से लोन लिया है उसके ऊपर वो इंटरेस्ट ले रहे हैं, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर ऑन आर्मी। तो जो भी जितना भी पैसा कमाया सब वो लोग मिसयूज में कर रहे हो पैसा। आप देखो इंडिया के पीछे एक पैसा, एक रुपया वो लोग स्पेंड नहीं कर रहे, जितना भी वो अपने से कमा रहे हो। सो दिस कॉल्ड द ड्रेन ऑफ वेल्थ। ठीक है, डीके ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री एंड हैंडीक्राफ्ट, 2 पॉइंट बोलो, हाँ बोलो यस। हाँ सर, decay of cottage industries and handicrafts. Heavy duties on Indian silk and cotton textiles in Britain destroyed Indian industries. On the other hand, British goods were imported into India at a nominal duty. By the middle of the 19th century, export of cotton and silk goods from India practically ceased. The art of spinning and weaving, which for ages had given employment to thousands of artisans, became extinct. The misery of the artisans was further compounded by the disappearance of their traditional patrons and buyers, the princes, chieftains, and zamindars. Fourth, economic decline of peasantry. The peasants were discontent with the official land revenue policy and the consequent loss of their land. In fact, it was the peasantry that bore the heavy burden of taxes to provide money for the trade of the company, for the cost of administration, and the wars of British expansion in India. For example, in Bengal, the land revenue was double the amount collected under the Mughals. Not even a part of this revenue was spent on the development of agriculture or on the welfare of the cultivator. Increase in the land revenue forced many peasants into indebtedness or into selling their lands. The traditional zamindars were replaced by merchants and moneylenders. These new landowners had no concern for the peasants. They pushed rents to exorbitant levels and evicted their tenants in case of non-payment. The economic decline of the peasants affected cultivation and led to many famines. हाँ ये भी कर लो ना, पांचवा, हाँ ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट। During unemployment, the traditional rulers were given financial support to scholars, preachers, and men of arts. The coming of the British led to the decline of such rulers, and gradually their patronage came to an end. Thus, all those who depended on their patronage were impoverished. When the native states were annexed to the British dominion, thousands of soldiers and officials in administrative, military, and judicial posts became unemployed because British policies excluded Indians from high posts. All these people became bitter enemies of the British rule in India. ओके थैंक यू, हाँ भाई। ओके तो अभी इसमें क्या था, एक और है, कितना हालत खराब की है, अपने को पढ़ के भी दया आ रहा है इंडिया के ऊपर। तो डीके ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री एंड हैंडीक्राफ्ट बराबर, तो कॉटेज इंडस्ट्री उन्होंने क्या कहा, हैवी ड्यूटी ऑन इंडियन सिल्क एंड कॉटन टेक्सटाइल इन ब्रिटेन डिस्ट्रॉय इंडियन इंडस्ट्री। मतलब अगर हमने मैन्युफैक्चर किया यहाँ पे कपड़ा बराबर, बिकॉज हमारा रॉ मटेरियल तो था, सिल्क हम खुद उगा रहे, तो वो हमने बनाया, हम उसको एक्सपोर्ट कर रहे फॉर एग्जाम्पल, तो वो लोग बहुत ज़्यादा ड्यूटी मार रहे
कि अगर एक शर्ट 200 रुपये का है, बोला नहीं तुमको इंग्लैंड में बेचना है ना तो उसको 300 रुपया ड्यूटी है। ओके, तो 500 रुपये की कॉस्ट हो गई। अभी वो लोग ने क्या किया, यहाँ से रॉ मटेरियल उधर लेके गए, नो चार्ज, नो ड्यूटी, फ्री ऑफ चार्ज, जो कॉस्ट टू कॉस्ट वहाँ पे बनाया शर्ट, और वो यहाँ पे लेके आए वापस, कोई चार्ज नहीं, कोई टैक्स नहीं देने का। तो उनकी चीज 200-250 में बिक रही है और हमारी वही चीज 500 में बिक रही है, कौन लेगा? बराबर है। तो लोकल में भी नहीं लेगा, इंडिया में भी कोई खरीदने वाला है, बाहर आप उसको एक्सपोर्ट कर रहे हो, वो भी टैक्स लगा रहे हो वो लोग एक्स्ट्रा। अल्टीमेटली क्या हुआ, सब चीज वही बना रहे, उनका ही प्रोडक्ट बिक रहा है। यू आर नॉट ए सेलर एट ऑल, अभी आपके हाथ में कोई कंट्रोल ही नहीं है। और ब्रिटिश गुड्स वर इम्पोर्टेड इंडिया एट नॉमिनल ड्यूटी, वहां पे बन के वो सस्ते में लेके आ रहे हो वो लोग, तो कैसे कॉम्पीट करोगे? तो एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन एंड सिल्क गुड्स फ्रॉम द इंडिया प्रैक्टिकली सीज, मतलब खत्म हो गया, सीज मतलब रुक गया। नाउ वी आर नॉट एबल टू एक्सपोर्ट एनी प्रोडक्ट। कौन लेगा? 500 रुपये में कोई खरीदने वाला ही नहीं है, क्या फायदा? The art export of the silk good from the Indian practically see the art of spinning and weaving which for ages had given employment to thousands of artisans। तो जब तक वो जो बनाते थे, कपड़ा बनाते, मशीन थी, जो हैंडमेड हैंडलूम्स थे, कितने सारे हैंडलूम से वो लोग बनाते थे कपड़ा, ह्यूज इंडस्ट्री अर्लियर, वो सब खत्म हो गई, एकदम से खत्म हो गई, मतलब विद इन 5 years के स्पेन में सब जीरो हो गया, ऑलमोस्ट सब बेकार हो गए। The misery of the artisan was further compounded by disappearance of their traditional patrons and buyers। तो वो जो ऑलरेडी ये तो खत्म हो गया, अभी उनको कोई सपोर्ट करता था, जब भी ऐसा सिचुएशन होगा तो राजा है वो कुछ पैसा दे देगा उनको घर चलाने के लिए, ओके, उनको कोई फाइनेंशियली वो मशीन लाना है उसका सपोर्ट, वो सब खत्म, उनके राजा ही नहीं बचा। नाउ ओनली ब्रिटिशर्स आर देयर, खत्म। तो द प्रिंसेस, चिप्टिशियन एंड जमींदार, ये सब लोग है ही नहीं, उसको जो हेल्प करने वाले लोग ही खत्म हो गए, तो अभी उनके पास कोई चारा ही नहीं बचा, दे आर हेल्पलेस, पैसा नहीं है, जॉब नहीं है, कुछ नहीं। पीजेंटरी, जो फार्मर थे, वह डिसकंटेंट विद द ऑफिशियल लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। तो जो वो लोग एक साल में समझो 10,000 का वीट का प्रोडक्शन कर रहे, 10,000 रुपया वो कमा रहे लेट्स से, उसके ऊपर वो 8,000 रुपया रेवेन्यू लेता है, चार्ज लेता है, वो बेचारा 2,000 रुपये में पूरा कैसा साल चलाएगा? वेरी डिफिकल्ट। उसमें भी वापस कुछ ये हो गया, ड्रॉट आ गया, फ्लड आ गया, देन वो तो बोला मुझे कुछ पता नहीं है, आपकी इतनी लैंड है ना, यू टू पे मी 8,000 रुपीज एवरी ईयर। वो बोला कि अभी ये साल तो मेरा 5 रुपए का भी खाना, मतलब वीट का प्रोडक्शन नहीं हुआ ड्यू टू द फ्लड। तो बोला वो मुझे नहीं पता, यू टू पे मी, नहीं पे करेंगे मारेंगे, जेल में डालेंगे, जमीन ले लेंगे आपसे, ये सब कॉन्सिक्वेंसेस। तो बहुत हालत खराब। इट वॉज recently that bore the heavy burden of tax to provide money for trade of the company। तो सबसे ज्यादा बिकॉज ये लोग कमा रहे हैं उसके ऊपर ही ज्यादा टैक्स। फॉर द कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कहाँ खर्चा करते थे वो लोग टैक्स का? एडमिन ऑफ द वॉर ऑफ ब्रिटिश एक्सपांशन इन इंडिया, हमारे पैसे से ही हमारे इंडिया में एक्सपांड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल बंगाल में क्या किया, द लैंड रेवेन्यू वॉज डबल, जो पहले 100 रुपया लेते थे टैक्स, 200 रुपया कर दिया। ओके, अंडर द मुगल्स, मुगल 100 रुपया लेते थे लेट्स से, ब्रिटिशर्स ने 200 लेना चालू कर दिया, और उतना कोई कॉस्ट या कोई प्रोडक्शन कुछ बढ़ा नहीं, तो आपका खर्चा बढ़ गया डबल से। नॉट इवन अ पार्ट ऑफ दिस रेवेन्यू है, चलो 200 रुपया लिया लेट्स से, जैसे इंडिया में क्या है, समझो हमसे मेरे से 5 लाख रुपया लिया, अब मेरे जैसे लोगों से 500 करोड़ रुपया का कलेक्शन हुआ महाराष्ट्र में, तो वो लोग क्या करेंगे, महाराष्ट्र में डेवलपमेंट होता है, मतलब दे पुट सम फैक्ट्रीज या रोड बनाएंगे या कोई कमर्शियल ऑफिस जिससे आपका रोजगार बढ़े, वैसा कुछ प्लान करते हैं। ऐसा नहीं कि 500 करोड़ रुपया लिया और दूसरी कंट्री में डाल दिया, तो ऐसा नहीं होता है, बट दे यूज्ड टू डू दैट वे। नॉट इवन अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू वाज स्पेंट इन डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और द वेलफेयर। बराबर, गरीब को भी नहीं दिया। एग्रीकल्चर में चलो उनको बारिश नहीं है तो दे यूज्ड टू मेक अ कैनल बनाना चाहिए था कि बारिश के टाइम यू कैन एबल टू स्टोर वाटर, या नदी में से लेके आ जाओ पानी को गांव तक, जो कि अभी है नर्मदा कैनल, आपने सुना होगा, ह्यूज प्रोजेक्ट नर्मदा कैनल, ठीक है। तो क्योंकि आपका पानी एट द एंड क्या होता है, समुद्र में जाके मिल जाता है, नदी का पानी तो वेस्ट है, उससे अच्छा आप उसको ऐसी जगह पे वो कैनल बना दो कि एटलीस्ट फार्मर कैन यूज एट द टाइम ऑफ ड्रॉट। इंक्रीज द लैंड रेवेन्यू फोर्स मैनी पीपल टू इनडेप्टनेस, बहुत बर्डन हो गया, ब्याज देना पड़ेगा,
बड़ा बड़ा इंटरेस्ट देना है, तो क्या करेंगे, इनटू सेलिंग देयर लैंड। अभी बचा क्या उनके पास, देखो पैसा है नहीं, गहने थे वो अब कब के बिक गए ये सब चक्कर में। अभी एट द एंड लास्ट बचा हुआ क्या है, एक लैंड। तो अभी क्या करेगा लास्ट में, वो बोलेगा ठीक है तेरा 10,000 रुपया 3 साल का बाकी है, समझो 30,000 रुपया, तो तेरी ये लैंड की कॉस्ट 25,000 है या 30,000 है, गिव इट टू मी, खत्म ना, आप इधर से निकल जाओ, जो करना है करो। सुसाइड कर देते वो लोग। द ट्रेडिशनल जमींदार वेर रिप्लेस बाय द मर्चेंट। तो जो अभी आपने मेरे से लोन लिया है, मैं बोला कि 8,000 रुपया तुम्हारा लोन इंटरेस्ट बाकी है, तो आप बोला ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर देता हूँ, 3 साल हो गया, अभी मैं बोला अच्छा ठीक है मैं मनी लेंडर हूँ, देन मैंने आपकी लैंड ले ली। तो जो पीसन थे उसके बदले अभी वो जमीन के जो होल्डर है, ओनर बन गए मर्चेंट एंड मनी लेंडर, ये दोनों अभी उनके ओनर बन गए। दे आर नो फार्मर है ही नहीं वो लोग, बराबर ट्रेडर हो गए बेसिकली। दिस न्यू लैंड ओनर्स हैड नो कंसर्न फॉर पीसन। बोला ठीक है अभी उसको जो करना है करे, अभी ये लैंड मेरी है, तू इधर से भाग, या तो तुमको काम करना है तो मेरी कंडीशन पे काम कर। तो उनकी लैंड के ऊपर उनको ऐसे मतलब वेजिस के ऊपर काम करना पड़ेगा, ऐसा हो गया हालत। दे पूछ द रेंट एक्सोबिटेंट मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा मतलब जो 5 रुपए का रेंट है समझो, तो 10 रुपया मांग रहा है, बोला उतना देना पड़ेगा तुमको, मुझे कुछ पता नहीं, या तो काम करना है तो ये तुमको भाड़ा देना पड़ेगा। उनकी जमीन पे ऊपर उनको भाड़ा देके काम करना है वैसा। एंड एविक्टेड द टेनेंट इन केस ऑफ नॉन पेमेंट, और अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो उनकी जमीन में उनके घर से आप निकाल लो, उनकी जमीन में से आप उसको बाहर कर दो, वैसा किया वो लोगों ने। द इकोनॉमिक डिक्लाइन ऑफ पीसन अफेक्टेड कल्टीवेशन एंड लीड टू मैनी फेमाइन। तो इसकी वजह से क्या हुआ, खाने के वांदे हो गए, फार्मर है ही नहीं, फार्मर काम ही नहीं कर रहे, कोई प्रोडक्शन कम हो गया ओवरऑल, देन डिमांड तो उतनी है, पब्लिक तो है उतनी, वैसा हो गया। कितना हालत खराब है सोचो सिचुएशन में। वी आर लकी इनफ कि हम लोग अच्छी पोजीशन पे अभी। चलो बोलो, ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट, हाँ ये हो गया ना। हाँ तो ट्रेडिशनल रूलर है गिवन फाइनेंशियल सपोर्ट, तो जो पहले रूलर थे वो क्या करते थे, स्कॉलर है, टीचर है, आर्ट्स है, तो उनको क्या करते पैसा देते थे, आएगा राज्य में ओके राजा के पास, वो गिव, पैसा है उनके पास, दिल गिव। आर्ट को आर्टिशन को जिंदा रखता था वो लोग, बराबर है। आज की तारीख में भी वैसा है ना, आर्टिशन के पास देखो इतना कोई, दो दे यूज टू हैव ह्यूज कैलिबर, ना नहीं इट्स नॉट इजी, बट उतना उनका क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, आप उसमें पैसा नहीं कमा सकते हो उतना, तो क्योंकि आपको सपोर्ट गवर्नमेंट करना चाहिए ना, वो नहीं करती उतना। कमिंग ऑफ ब्रिटिश लीड द कमिंग ऑफ ब्रिटिश लीड टू द डिक्लाइन ऑफ सच रूलर एंड ग्रेजुअली देयर पैट्रोनेज केम टू एन एंड। तो जो आर्टिशन थे, स्कॉलर थे, वो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, सब रूलर को हटा दिया, उनको ही खाने के वादे, आपको क्या ही सपोर्ट करेंगे वो लोग, तो रूलर नहीं, तो रूलर जो आर्टिशन को सपोर्ट करते थे वही नहीं है, तो आर्टिशन क्या रहेगा, जिंदा, खत्म उसकी भी लाइफ। Thus all those who depend on their patronage were impoverished, मतलब वो एकदम हालत खराब हो गई, गरीब हो गए। They are very lack of food, money, everything, facilities. When the native states were annexed to British dominion, thousands of soldiers and officials in administrative, military, judicial post become unemployed. जब भी ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जीत लिया बहुत सारी चीज, वो बाद में बोला, अच्छा वो बोलेगा जब भी राजा के टाइम जो ऑफिस में 50 लोगों का स्टाफ है लेट्स से इंडियन, तो अभी ब्रिटिशर्स ने जीत लिया, वो 50 को बोलेगा चलो भाई जाओ तुम्हारे घर पे, तुम्हारा कुछ काम नहीं है, हम लोग हमारे लोग रिक्रूट करेंगे। तो ऐसे कौन से सेक्टर में एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब जो इंडिया का एडमिनिस्ट्रेटिव करता है वो डिपार्टमेंट, मिलिट्री में जो बड़े बड़े पोस्ट पे इंडियन थे, सोल्जर्स थे अच्छे, दे आर जॉबलेस। जुडिशियल जो आपकी लॉ एंड ऑर्डर मैनेज करते हैं, एवरीथिंग इज कॉलेप्स, इंक्लूडिंग इंडियन फ्रॉम हाई पोस्ट, ऑल दिस पीपल बिकम बिटर एनिमी। तो ये सब लोग जो भी लोग थे, एडमिनी वाले लोग, मिलिट्री, तो पूरा एक बंच ऑफ पीपल, ग्रुप पूरा अगेंस्ट हो गया ब्रिटिशर्स के, ठीक है। देन इनह्यूमन ट्रीटमेंट, हाँ अभी बोलो डियर्स। Ah, sir. Inhuman treatment of indigo cultivators. Indigo trade was highly profitable to the British, but the conditions under which the peasants had to work were inhuman. The peasants were forced to cultivate only indigo in fields chosen by the British planters. If they planted anything else, their crops were destroyed and their cattle were carried off as punishment.
7. Poverty and famine. British economic exploitation, decay of indigenous industries, high taxation, the drain of wealth, stagnation of agriculture, and exploitation of the poor peasants reduced the Indians to extreme poverty. Famines ravaged the country in the second half of the 19th century. There were 12 major and numerous minor famines between 1765 and 1857. The famines were the result of drought, other natural calamities, as well as bad administration. The British government did nothing to lessen people's misery. 8. Decline of landed aristocracy. The landed aristocracy, which included the talukadars and the hereditary landlords, were deprived of their estates. According to the provisions of the Inam Commission 1852, 20,000 estates were क्या है सर confiscated हाँ कॉन्फिस्केटेड मतलब जब्त हाँ करना, कॉन्फिस्केट करना मतलब आपका आप आपके घर पे रहते हो ना, मैं आके आपका घर ले लूंगा, आपको बाहर निकाल दूंगा, मेरा ताला मार दूंगा, आपकी चीज नहीं रही, वो मेरी हो गई। हाँ 20,000 estates were confiscated when the landlords failed to produce evidence like title deeds by which they held the land. These confiscated lands were sold by public auction to the highest bidders. Such estates were usually purchased by merchants and moneylenders who did not understand the needs of the tenants and exploited them. This drove the landed aristocracy to poverty without benefiting the peasantry, which suffered under the weight of exorbitant land revenue. ओके, वेरी गुड, नाइस। मजा आया दिया था आपका, सुनने में मजा आता है। ओके, Thank नाउ you, sir. इन ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ इंडिगो कल्टीवेटर, बरोबर है। तो उसको पहले तो बोला कि तुम भाई हमारा इंडिगो ही उगाना पड़ेगा तुमको, कंपलसरी, देयर इज नो अल्टरनेट। तो वो लोग उगा भी रहे कि ग्रो कर रहे। इंडिगो ट्रेड वाज हाईली प्रॉफिटेबल टू ब्रिटिश, बट कंडीशन अंडर विच पीसन हैड टू वर्क वेरी इनह्यूमन। उगा मतलब वो ग्रो तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो फार्मर है वो बेचारे बहुत खराब हालत में, जो इंडिगो ग्रो कर रहे हैं। The peasants were forced to cultivate only indigo, देखो लिखा है, in the field chosen by the British planter। तो ब्रिटिशर बोले कि नहीं, ये लैंड में है ना, ये वाले पार्ट में तुमको इंडिगो ग्रो करना है कंपलसरी। इफ दे प्लांटेड एनीथिंग एल्स, देखो चलो वो बोला कि नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा, मैं तो राइस ही उगाऊंगा, ऐसा बोला उसने। देयर क्रॉप्स वेर डिस्ट्रॉयड। अगर ऐसा किया ना, और रात को आके जला देगा पूरा, बरोबर और है। क्या वो हाँ, कर देते थे ना, जब्त क्या कर देते थे ना जो भी कैटल था वो उसका, क्या करते थे? कैटल जो भी था वो जब्त कर लेते थे हाँ, ना। जब कर देंगे, पावर है, कुछ भी करेंगे, उनको मर्जी आयो करेंगे भाई। देखो कुछ भी उनको बोलने वाला है नहीं, मोरलेस उनका फायदा देखेंगे वो, 100 बात की एक बात। इफ दे प्लांट एनीथिंग एल्स द क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड एंड देयर कैटल वे, हाँ लिखा है आपने, कैरिड ऑफ एज पनिशमेंट। तो उसके जो भी कैटल है, अभी गाय है भैंस है, वो सब लेके चले जाएंगे वो लोग, ये ब्रिटिशर्स, पुलिस वाले लोग, बरोबर है। तो बहुत गंदा हालत हो गया। ये कल्टीवेट कर भी रहे ना तो भी उनका प्रॉब्लम है। मैं पॉवर्टी एंड फेमाइन्स, तो खाने के वांदे हो गए। अभी मोरलेस क्या हो गया, मैं लैंड लेके तो बैठ गया, मैंने आपसे लैंड ले लिया, आपने मुझे पैसा चुका नहीं पाए, मैंने लैंड ले लिया, बरोबर है। नाउ आई डोंट नो हाउ टू डू फार्मिंग, मुझे नहीं पता, बरोबर है। मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, आपको भी करने नहीं दे रहा हूँ। अल्टीमेटली क्या होगा, या मैं इंडिगो ही उगा रहा हूँ हर एक जगह पे, तो खाना कहाँ से, वेरी योर फूड कहाँ से आएंगे, वेजिटेबल फ्रूट ग्रेन्स कहाँ से आएंगे? ओके, पैसा है, पैसा कमा रहे वो लोग, नो डाउट, पर पैसा खा तो नहीं सकते ना। ब्रिटिश इकोनॉमी एक्सप्लॉइटेशन, डीके द इंडिजीनियस, इंडिविजुअल अपनी लोकल इंडस्ट्री, हाई टैक्सेशन एंड ड्रेन ऑफ वेल्थ, स्टैग्नेशन मतलब रुक गया एग्रीकल्चर, क्योंकि क्या हुआ, एक ही चीज उगा रहे हर एक जगह पे, तो क्या होगा। एंड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ पुअर पीसन रिड्यूस द इंडियन टू एक्सट्रीम पॉवर्टी, इसकी वजह से बहुत हालत खराब, एक टाइम भी खाना नहीं खा पा रहे फार्मर्स। Famine ravaged the country in the second half of the 19th century. There were 12 major, numerous minor famine, मतलब खाने का अकाल पड़ गया, 12 बार ऐसा हो गया। कितने टाइम में? 12 बिटवीन 1765 टू 1857। और खाने का दुकान मतलब ऐसा नहीं है, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे वो लेवल तक है, मतलब लोग 2-2 दिन तक खाना नहीं खाते। मैंने सुना एक ऐसा मेरे किसी से कि वो ऐसा था, मूंग हम खाते ना मूंग,
बरोबर है, मूंग की दाल खाते ना, मूंग दाल, तो वो लोग ऐसा करते थे कि मूंग दाल में पानी डालने का, उसको उबालने का, और वो पानी पीने का, क्योंकि उसमें एनर्जी रहती है बेसिकली, तो वो पानी पीने का, एंड दे यूज्ड टू डू होल फैमिली फॉर 3 days। वो पर्टिकुलर एक समझो 100 ग्राम मूंग है या 200 ग्राम मूंग है, उसका पानी पी के वो लोग जिंदा रहते हैं। इतना गंदा हालत, मतलब सीवियर, लोग ऐसा मर रहे लिटरली खाने की वजह से। तो वो सिचुएशन क्रिएट हो गई ये चक्कर में। द फेमाइन्स वेयर द रिजल्ट ऑफ ड्रॉट, अदर नेचुरल क्लाइमेट। अच्छा, उसके अलावा ये 100 साल में और भी बहुत प्रॉब्लम, वो तो रूटीन होता ही है, ज़्यादा बारिश हो गया, बारिश ही नहीं हुआ, वो अलग से, वो एडिशनल लफड़ा। as well as bad administration. The British government did nothing to lessen people's misery. तो उसको कम करने के लिए इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, बोला ठीक है मरने दो, अपने को क्या करना है, जो होगा वो होता रहे, होने रहे दो, वी डोंट हैव टू वरी अबाउट द इंडियंस फार्मर्स, वैसा। फिर डिक्लाइन ऑफ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी, मतलब जो उच्च वर्ग, एरिस्टोक्रेसी मतलब बड़े लोग, बड़े लेवल के जो थे, बड़ो जमींदार है, तालुकादार, जो बड़ी पोजीशन पे थे, उनका भी वो लोग ने क्या किया, एक्सप्लॉइट किया। लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वे इंक्लूडेड तालुकादार, हेरिडेटरी लैंडलॉर्ड, मतलब आप, मेरे पास जमीन है, मेरे लड़के के पास जमीन, हेरिडेटरी जमीन वारसदार में मिलता है ना, वैसा। वे डिप्राइव्ड ऑफ देयर एस्टेट, ले लिया उनसे, जब्त कर लिया सब। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ इनाम कमीशन 1852, एक कुछ उन्होंने कुछ बनाया, एक कमेटी बनाया। 20,000 एस्टेट्स वेर कन्फिस्केटेड व्हेन द लैंडलॉर्ड फेल्ड टू प्रोड्यूस एविडेंस लाइक टाइटल डीड्स। मतलब क्या हुआ, अभी समझो ये दियांश का घर है, तो वो टाइम पे ऐसा नहीं था कि भाई कोई एग्रीमेंट है, या समझो इफ दियांश इज माय सन, तो मैंने दियांश के नाम पे कुछ लिख के नहीं दिया, ओके नाउ आई एम नॉट देयर, दियांश इज देयर। अभी ब्रिटिश गवर्नमेंट आएगी, बोलो कि ए भाई ये क्या है, किसकी जब किसका घर है, बोला मेरा घर है, मेरे पापा ने दिया, ओके ठीक है, कहाँ पे, पेपर दिखाओ मुझे। टाइटल डीड मतलब एग्रीमेंट, कोई एविडेंस जो कागज में लिखा रहेगा, तो वो आप प्रोड्यूस नहीं कर पाए। बोला ये भाई तेरा लैंड ही नहीं है, अगर तेरा लैंड नहीं है तो गवर्नमेंट का लैंड है, तेरी प्रॉपर्टी नहीं है तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, वैसा करके उन्होंने देखो ना 20,000 एस्टेट। वो टाइम पे पेपर वर्क जितना इंपॉर्टेंट नहीं था, वी डोंट फॉलो द पेपर वर्क, बराबर, जरूरत ही नहीं था, क्यों, कोई मांगने वाला है नहीं, कोई सामने क्लेम करने वाला नहीं है, बट ये गवर्नमेंट ने ऐसा नाटक किया, ठीक है। टू प्रोड्यूस एविडेंस लाइक टाइटल डीड्स बाय विच दे हैड द लैंड, नहीं है जमीन मेरी, खत्म। दिस कॉन्फिस्केटेड लैंड वेयर सोल्ड। अच्छा, वो लैंड ले लिया, फिर उसको गवर्नमेंट क्या करेगी, लैंड को ऑप्शन। ऑक्शन करेगी, बरोबर है, उसको लैंड को और वो ले लेते थे वो, मतलब ऐसे देखते नहीं थे कि गरीब की है वो, ले हाँ, लिया। उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बरोबर है। तो वो कौन लिया, जिसके पास पैसा है, ऑक्शन करेंगे, मैंने बोला 500 रुपया, हितेश बोलेगा 600, दियांश बोलेगा 800, वैसा। तो उन्होंने, गवर्नमेंट के पास पैसा आ गया, मनी लेंडर के पास लैंड आ गई। अभी पीसन तो कोई जगह पिक्चर में है ही नहीं, जो बेचारा सच में मेहनत करता था, who did not understand the needs of tenants and exploited them। और उनको नहीं पता कि फार्मर नहीं रहेगा तो प्रोड्यूस क्या करेंगे हम लोग, खाली जमीन लेके क्या करना है, ओके, उसमें कुछ ग्रो तो करना पड़ेगा। दिस ड्रोव द लैंडेड एरिस्टोक्रेसी टू पॉवर्टी विदाउट benefiting the peasantry which suffered under weight of exorbitant land revenue। उसके एक्स्ट्रा बहुत सारे लैंड रेवेन्यू वो लोग कलेक्ट करने लगे। फार्मर्स इज नो मोर, जहाँ जहाँ पे छोटा छोटा भी था, तो ये लोग ने ये जमीन ले लेके सब पैसा कलेक्ट कर लिया, अल्टीमेटली खुद की जेब भरी। दे डोंट बॉदर कि अरे फार्मर कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा, नॉट एट ऑल, ठीक है। और आगे करना है ना, एक मिलिट्री कॉस्ट कितने हैं, 7 है शायद, 8 है। 7। 8 है सर। देखो आइए हो जाएगा मिलिट्री कॉज अभी, और इमीडिएट कॉज भी हम लोग कर लेंगे, तो बाद में बचेगा ना, वो बाद में नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे कॉन्सिक्वेंसेस, उसके लिए अभी एक और लेक्चर लगेगा, ये थोड़ा बड़ा है, इसमें बहुत सारी चीजें कॉन्सिक्वेंसेस में, बट सर हिस्ट्री का टेस्ट कब है, कल है? हाँ, कल ले रहे हो ना आप हिस्ट्री का टेस्ट? हाँ आपका तो कल है, साइंस वालों का कल नहीं है। बट ठीक है तो। ये वो बोर्ड में नहीं पूछा ना, ये इसमें एक भी चीज नहीं पूछी बोर्ड में, ये कॉन्सिक्वेंसेस में से तो पता नहीं, बाकी सब पूछा। आप लोग श्योर हो ना कॉन्सिक्वेंसेस है ना? हाँ सर है। ठीक है, चलो, कहाँ गए हम लोग, कहाँ थे, सर इधर मिलिट्री कॉस्ट। मिलिट्री कोर्स, हाँ। अभी मिलिट्री में क्या गड़बड़ हो गई भाई,
हाँ बोलो. Answer. Military cause. Several factors contributed to the change in the attitude of the Indian soldiers towards the company. These included the following. First, ill treatment of Indian soldiers. The East India Company established the British Empire in India with the help of Indian soldiers. Despite the fact that Indian soldiers were as efficient as the British counterparts, they were poorly paid, ill fed, and badly housed. British military authorities forbade the sepoys from wearing caste or sectarian marks, beards, or turbans, and they showed disregard for the sentiments of the sepoys. Second, General Service Enlistment Act. According to the traditional belief, it was दियास दियास सॉरी है बेटा, एक मिनट, आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ. वेरी सॉरी फॉर दैट, बट इसके लिए बोल रहा हूँ कि ये जो है ना, ये लोग ने पूछा, हम लोग ने, मैं बोला नहीं है आपको, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट 2-3 बार पूछ लिया है बोर्ड में. ये देखो, ये रहा जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट. ठीक है. व्हाट वाज द जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट? 2 मार्क का. बरोबर है. सी. तो आपको, आपके लिए बहुत बुरी बात है. बुरी बात इसके लिए है कि आपको ऐसा कोई भी आपको बोला है 3 लिखना है ना, देन नो प्रॉब्लम. बट देखो, उसने स्पेसिफिक ये चीज पूछ ली. टुमारो दे माइट आस्क एनीथिंग, फॉल्टी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रूप्स. बताओ क्या था प्रॉब्लम, क्यों वो लोग का प्रॉब्लम हुआ, फॉल्टी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ ट्रूप का. तो आपने तो पहले 3 पॉइंट किए, बट ये पॉइंट तो आपने देखा भी नहीं. लेट्स से देन व्हाट यू राइट, मर जाओगे. सो ऐसा नहीं कर सकते. इट्स अ बोर्ड, आपको करना ही पड़ेगा. देयर इज नो अल्टरनेट. मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली. भले आपके स्कूल में बोल रहे हैं या जो बोर्ड का सर पेपर. हाँ बोलो बेटा. वितरकेतन सुनवाके जे भाषांना कोई ने क्या क्या. ये पूछा से ओमिटे बात से पूछा. हाँ ओमिट है वो तो नहीं पूछेगा, वो बात है. ओमिट है ही कितना. अभी 100 पेज में से 5 पेज ओमिट रखा है उन्होंने. 5% 10% ओमिट है खाली. अदरवाइज मेरा वो मानना है कि आपको हर एक पॉइंट करने पड़ेंगे, अच्छे से करने पड़ेंगे. दे माइट आस्क फ्रॉम एनी तो कॉर्नर. मतलब सब पॉइंट में से सर एक एक दो दो मतलब करेंगे तो चलेगा अभी देखो, सर? लिसन डियर, आपके सामने मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ. इट इज फ्रंट ऑफ यू. उन्होंने बोला व्हाट वाज द जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, 2 मार्क. तो अभी 2 मार्क का तो आपको इसमें से लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना, आप खुद बोलो. कल जाके उसने बोला कि डेप्रीवेशन ऑफ अलाउंसेस, एक्सप्लेन. तो क्या लिखोगे फिर. तो आई मीन टू से आपको ये हर एक पॉइंट पता नहीं होना. मतलब जो है उसके अंदर से सब पॉइंट्स में से एक एक दो दो पॉइंट करेंगे तो चलेगा ना मतलब? थोड़ा देखो, अभी उसने बोला लेट्स से जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट, तो ये आपको तो ब्रीफ 2 मार्क में तो इतना लिखना ही पड़ेगा ना. आप खाली ऐसा बोलो कि एज पर ये 1856 तक लिख दिया आपने, फिर आगे का नहीं लिखा, तो आई डोंट थिंक सो, जस्टिफाई नहीं होगा. पता नहीं है 2 मार्क के लिए आपको कितना लिखना पड़ेगा वो आप देखो. आई मीन लिखना पड़ेगा. अगर अगर देखो, हाँ आप 2 2 3 3 पॉइंट कभी लिख सकते हो. जब भी आपको पूरे कॉजेस पूछे, आपने खाली 3 कॉज लिखना है, दैट टाइम यू हैव टू राइट 3 मेजर पॉइंट. पॉइंट लिखो, हेडिंग, और उसके अंदर 2 2 लाइन या 3 3 लाइन लिख सकते हो. बराबर. बट अगर स्पेसिफिक पूछ लिया देन इट्स अ प्रॉब्लम. हाँ ओके दिया. Awesome. Second, General Service Enlistment Act. According to traditional belief, it was a taboo for a Brahmin to cross the seas. The British Parliament passed the General Service Enlistment Act of in 1856. As per this act, Indian soldiers could be sent overseas on duty. The act did not take into account the sentiment of the Indian soldiers. The Brahmin soldiers saw in this a danger to their caste. This led to a feeling of resentment among them. 3. Larger proportion of Indians in the British Army. The number of British troops in India was never very large, with the British in ratio as low as 1 in 4,000. Dalhousie had recommended that more British soldiers should be recruited in the army. This could not come through. Thus, it made it easier for the large number of Indian soldiers to take up arms against the British. 4. Bleak prospects of promotion. All higher positions in employment was reserved for the British, irrespective of their performance. Even the Indian soldiers formerly occupying high positions in the armies of native princes could not rise above the rank of a subedar.
The future of the Indian soldiers was bleak without chances of promotion. ओके ओके, तो देखो पहला क्या था, उन्होंने बोला आर्मी में इल ट्रीटमेंट, इंडियन सोल्जर को बहुत एकदम कुत्ते की तरह बिहेव कर रहे हैं, बराबर, उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। ओके, क्या बोला, ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया वेर हेल्प ऑफ इंडियन सोल्जर्स डिस्पाइट द फैक्ट दैट इंडियन सोल्जर वेर एज एफिशिएंट, अपना कैलिबर उतना ही है, वी आर एज पावरफुल एज द ब्रिटिश सोल्जर, इनफैक्ट शायद ज्यादा भी हम लोग कैपेबल है लड़ने के लिए, ठीक है, और लड़े भी इंडियन के सामने, इंडियन स्टेट उनको ही वजह से ही उनके पास आया। जस्ट इमेजिन, अगर वो हेल्प नहीं करते इंडियन सोल्जर तो वो ले ही नहीं पाते थे। रेशियो देखो ना आगे, 4000 और 1 का रेशियो, वो रेशियो तो मैं तो बिलीव ही नहीं कर पा रहा हूँ। 4000 इंडियन सोल्जर, 1 ब्रिटिश सोल्जर, वैसा रेशियो है। सोचो, मतलब मरेंगे हमारे ही लोग मरने वाले, उनके तो लोग आदमी टच भी नहीं होगा, हमारे सामने हमारे ही लोग मर रहे मोटा मोटा। सर बट हम लोग भी तो एनेक्स कर सकते थे ना, हम लोग इतने सारे था, वो एक ही था। तो नहीं किया, वही तो, दैट इज वाज द प्रॉब्लम। इमेजिन, आप सोचो ना, आप खुद सोचो कि अगर मैं, मेरे नीचे मेरा एक, इफ आई एम ब्रिटिशर, ओके, तो मेरा एक बंदा और साथ में 4000 इंडियन सोल्जर, और फिर भी वो मुझे मारने नहीं आ रहे, वो हमारे इंडियन लोगों को मार रहे स्टेट जीतने के लिए। दूसरे समझो दिल्ली को किया एनेक्स, या राजस्थान को किया, लाइक दैट। क्यों? कि वो क्या था, डरे थे, और कोई एनेक्स करे, मतलब कोई आवाज उठाएगा तो वो लोग जेल में डालेंगे, मार देंगे सबके सामने, वैसा सब करते, तो कोई भी आवाज उठाने के लिए डर रहे थे। इसके लिए इतने सारे फैक्टर्स इकट्ठे हुए तभी जाके वो सामने आए, मतलब हर एक कास्ट, हर एक सेक्टर को लगा कि नहीं नहीं गलत है गलत है, फिर एक यूनिटी बनी। सोचो, मेरे 4000 और 1 का रेशियो तो अनबिलीवेबल है, मतलब फिर भी हम लोग क्या ही करते थे, मतलब कुछ भी। देखो ना, ब्रिटिश काउंटर पार्ट, दे लिखा भी है, द इंडियन सोल्जर वेर एफिशिएंट एज द ब्रिटिश काउंटर पार्ट, मतलब ब्रिटिश सोल्जर के कंपेयर में हम लोग बहुत अच्छे थे एज ए सोल्जर। दे वेर पुअरली पेड, तो भी पैसा नहीं देंगे, बराबर, ब्रिटिश सोल्जर है, उसको 10,000 पगार, अपने को 2000 पगार। इल फेड, खाना नहीं देंगे, कोई फैसिलिटी नहीं, बिकॉज यू हैव टू ट्रैवल अ लॉट, किसी राज्य को जीतना है तो आपको चलते चल के जाना है, तो अपने को खाना नहीं मिलेगा, उनको मिलेगा। बैडली हाउस, जगह नहीं देंगे रहने के लिए अच्छे से। ब्रिटिश मिलिट्री अथॉरिटी फॉरबेड द सिपाही फ्रॉम वेयरिंग, अच्छा इतने से तो कम नहीं, बोला नहीं नहीं तुमको पगड़ी नहीं बांधने का, तुमको क्रिश्चियन का वो जो क्रिश्चियन तो नहीं भाई, हिंदू का कुछ ओम नहीं लगाने का, वो चालना नहीं करने का, उधर टीका नहीं करने का, वो सब अलाउड नहीं किया वो लोग ने, वो भी उन्होंने बोला नहीं, नॉट अलाउड, आप ब्रिटिश आर्मी में हो, यू हैव टू फॉलो दिस रेगुलेशन। जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट इंपोर्टेंट है, पूछा है 2 बार। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल बिलीफ, ऐसा था एक्चुअली, कि मैं बताता हूँ कि अपने को ऐसा टैबू, मतलब ऐसा एक सोच था कि भाई अगर हम लोग ओवरसीज मतलब हम दूसरी कंट्री में गए, मतलब यू क्रॉस द सी एंड यू गो टू सम डिफरेंट कंट्री, तो आपका धर्म, मतलब आपके जो रिलीजियस है उसको अफेक्ट होगा। कैसे? अगर मैं गया, समझो आई वेंट टू द यूएस, देन आई बिकम अ क्रिश्चियन, बराबर, तो मैं फिर मेरे धर्म से जुड़ा हुआ नहीं रहूंगा। देन अगर मुझे जुड़ा रहना है तो आई हैव टू बी इन इंडिया ओनली, आई शुड बी अमंग माय पीपल, देन मेरी धर्म, मेरा रिलीजियस इंटेक्ट रहेगा। तो ये लोग ने क्या किया, एक एक्ट निकाला, वो ट्रूप में बहुत सारे सब कास्ट के थे ना, तो उसने एक एक्ट निकाला, कौन सा था ये, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। उसमें बोला 1856, अकॉर्डिंग टू दैट इंडियन सोल्जर कुड बी सेंट, तो इंडियन सोल्जर रहेंगे उनको कहाँ पे भी भेज सकते हैं। क्यों ऐसा? बिकॉज वो लोग को बहुत सारी वॉर चल रही थी, खाली इंडिया के साथ नहीं था, दे यूज्ड टू एनेक्स सो मेनी अदर कंट्रीज, तो क्या करेंगे, अपने इंडियन सोल्जर को भेजेंगे, समझो रशिया के उधर या जापान के उधर, किधर भी, वेयर एवर दे वांट, तो ओवरसीज ऑन ड्यूटी भेज सकते हैं, ऐसा एक एक्ट बना दिया इंडिया के अंदर। द एक्ट डिड नॉट टेक इन अकाउंट द सेंटीमेंट, उन्होंने वो नहीं सोचा कि भाई उनके रिलीजियस में क्या प्रॉब्लम होगा, उनकी फैमिली के ऊपर क्या अफेक्ट होगा, वो सब नहीं, आपको जाना है तो जाना है बस, आई डोंट नो, आपको जो फील होगा, आपकी जो सेंटीमेंट की प्रॉब्लम होगी, वो मुझे कोई केयर नहीं है। द इंडियन सोल्जर, द ब्राह्मण सोल्जर सॉ इन दिस अ डेंजर टू देयर कास्ट, उनको लगा भी हमारा धर्म, हमारी कास्ट अभी खतरे में है, ऐसा कर करके हमारे लोग को बाहर भेज देंगे तो कैसे चलेगा। दिस लीड टू फीलिंग ऑफ रिसेंटमेंट, मतलब क्रोध, नाराजगी अमंग देम। लार्जर पोर्शन ऑफ इंडियंस इन द ब्रिटिश आर्मी, एक और भी एक ये अच्छा फायदा था हमारे लिए तो, कि 4000 से 1 का रेशियो था, कल जाके कुछ गड़बड़ हो गई
तो हम उसको, जैसे भव्य ने बोला, हम उसको ओवर पावर कर सकते हैं। बट ये चीज उन्होंने, डेलहाउसी ने ये एड्रेस भी किया गवर्नमेंट को कि भाई अपना पोर्शन बहुत कम है, 4000 इंडियन के सामने हमारा एक ही बंदा है, कल जाके वो लोग हमारे सामने हो गए, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बट उसको कुछ, उसका जो पॉइंट है वो किसी ने कंसीडर नहीं किया। दिस कुड नॉट बी कम थ्रू, देखो उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया गवर्नमेंट ने। Thus it is made it easier for the large number of Indian soldiers to take up arms against the British। तो इसकी वजह से हमको थोड़ा फायदा हो गया। अगर ब्रिटिश सोल्जर ज्यादा होते तो ये स्टेज पे भी शायद हम लोग मतलब आगे नहीं जा सकते थे। ब्लिक प्रोस्पेक्ट ऑफ प्रमोशन मतलब कुछ भी नहीं है, कुछ आप जहाँ पे हो जिंदगी भर उधर ही सड़ने का है, वही सैलरी में सड़ने का। नो प्रमोशन, नो सैलरी इंक्रीमेंट, नो फैसिलिटी इम्प्रूवमेंट, नथिंग। All higher position in employment were reserved for British। मेन पोजीशन में तो ब्रिटिशर्स बैठे हैं। इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर परफॉर्मेंस, कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, इंडिया वाला ज्यादा कैपेबल है, आपको कुछ भी नहीं है, आपको एक सूबेदार की पोजीशन मैक्स टू मैक्स थी, सूबेदार के ऊपर आप जा ही नहीं सकते। जैसा भी आपकी स्कूल में अगर मैं बात करूं, देयर माइट बी सम टीचर, ओके, वो उनका कैलिबर इज एज गुड एज योर प्रिंसिपल, बराबर है, फिर भी उसको क्या करेंगे, टीचर की पोजीशन पे ही रखेंगे जिंदगी भर। वो रिटायर होगा तो एज ए टीचर ही जाएगा। जनरली क्या होता है बहुत सारे स्कूल में, अगर टीचर है फिर उनकी एक पोस्ट बढ़ती है, फिर वाइस प्रिंसिपल, फिर प्रिंसिपल, वैसा बनता है, धीरे धीरे उसको है ना प्रमोशन मिलता है। अगर बहुत लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करते हैं ना, देन यू विल गेट दिस काइंड ऑफ पोजीशन, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, वो लोग ने ऐसा नहीं किया। हाई पोजीशन इन द आर्मीज ऑफ नेटिव प्रिंसेस could not rise above the rank सूबेदार, तो मैक्स टू मैक्स आपको क्या मिलेगा, सूबेदार तक मिलेगा। द फ्यूचर ऑफ इंडियन सोल्जर वेर ब्लिक विदाउट चांसेस ऑफ, तो अपना कोई फ्यूचर था नहीं जॉब के अंदर, यू हैव टू बी देयर, एक स्टैंडस्टिल जगह पे आप रुके हुए थे। डेप्रिवेशन ऑफ अलाउंस, द एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश डोमिनियन इन इंडिया, मैं पढ़ लेता हूँ, अफेक्टेड द सर्विस कंडीशन ऑफ सिपोई। तो क्या हुआ, बहुत अलाउंस नहीं दे रहे, कुछ भी, मतलब अलाउंस मतलब ऐसा होता है भत्था उसको बोलते हैं, इसमें आया भी है नाम, भत्था लिखा है, देखो ये रहा एडिशनल भत्था, एक टा है लेकिन आपको बोलना है भत्था। भत्था मतलब क्या होता है कि जैसे समझो आपके स्कूल में लेट्स से 8 घंटे का ड्यूटी है, लेकिन अभी पेपर चेक करना है सेमिस्टर के, देन व्हाट हैपन, यू हैव टू सीट फॉर 3-4 आवर्स एक्स्ट्रा, तो ही वो सब काम होगा, इजी नहीं है पेपर चेक करना। तो अभी एडिशनल काम किया, देन यू विल गेट पर आवर, समझो टीचर को बोला है कि 300 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, बिकॉज यू आर डूइंग एक्स्ट्रा वर्क, आपने 8 घंटा पढ़ाया, नाउ यू हैव टू चेक द पेपर ऑल्सो, तो उसको बोलेंगे भत्था, एक्स्ट्रा पैसा अपार्ट फ्रॉम योर सैलरी। दे वर रिक्वायर्ड टू सर्व इन एरियाज अवे फ्रॉम देयर होम विदाउट एक्स्ट्रा पेमेंट। जैसे क्या होता है कि समझो आपको टीचर है, तो आपको रिक्रूट किया फॉर एग्जाम्पल मलाड की ब्रांच के लिए, नाउ ऐसा हुआ कि वो टीचर को, आपकी कोई ब्रांच है पूना में चिल्ड्रंस एकेडमी की, तो उनको क्या बोला, टीचर को वहां पे शॉर्टेज है टीचर की, तो टीचर को बोला आपकी टीचर को भाई यू हैव टू शिफ्ट टू पूना, तो बोला अरे मेरा घर इधर है, मेरी फैमिली इधर है, हाउ डू आई गो टू पूना, तो बोला ठीक है डोंट वरी, मैं आपको रेंट हम स्कूल वाले प्रोवाइड करेंगे रेंट, जितना भी रेंट होगा घर का, ओके, आपके बच्चे का एजुकेशन का शिफ्टिंग हम करवा लेंगे, ओके, आपको जो हर रोज 500 रुपये एक्स्ट्रा देंगे जो सैलरी है उसके अलावा, दैट इज ऑल कॉल्ड भत्था, बराबर। तो उसको बेनिफिट मिलेगा बिकॉज यू आर अवे फ्रॉम योर मदरलैंड, घर से दूर हो आप। तो उन्होंने क्या बोला, विदाउट एक्स्ट्रा पेमेंट, इंडिया वाले को भेज दिया चाइना, कुछ भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलेगा, एक तो ऑलरेडी कम मिल रहा है, 2000 रुपया मिल रहा है सैलरी, और एक पैसा भी ज्यादा नहीं मिलेगा, दो यू आर अवे फ्रॉम योर फैमिली। एडिशनल भत्ता, फॉरेन सर्विस अलाउंस, द पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 विथड्रॉ the privilege of free postage enjoyed by sepoy, और अपार्ट फ्रॉम द और एक्ट निकाला पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854, ये याद रखना पूछेंगे कि उसने क्या किया, पोस्टेज में मतलब आप आपके फैमिली के साथ कुछ यू नो यू आर टॉकिंग अबाउट, मतलब आप लेटर लिख रहे हो, वो टाइम पे आई थिंक ट्रंक कॉल था, बात कर रहे हो, या कोई पार्सल आ रहा है आपका वहां से घर से, पहले फ्री था बिकॉज यू आर इन आर्मी, बरोबर, आप आर्मी में हो तो आपको ये सब चीज का चार्जेस नहीं लगेगा, फ्री में आप कर सकते हो। बट यहाँ पे बाद में ये एक्ट लाके वो भी बंद कर दिया, जस्ट इमेजिन हाउ क्रूल दे वर, ठीक है। देन एक था फॉल्टी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रूप, तो उनके पास जो ट्रूप था, मतलब उनके पास जो आर्मी थी, उन्होंने अलोकेशन बरोबर नहीं किया,
उन्होंने बोला जो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंट मतलब इम्पोर्टेंट था दिल्ली इलाहाबाद हैड नो ब्रिटिश आर्मी, जो मेन पॉइंट था वहाँ पे ब्रिटिश आर्मी है ही नहीं, एंड वेयर होली हेल्ड बाय द इंडियन सोल्जर। मतलब ऐसा हो गया, आपने चोर को बोला कि बैंक की रक्षा कर, बराबर, चोर को एक पोजीशन दे दिया कि आज तू गेट पे खड़ा रहे बैंक के सामने, तो चोरी करने वाला है, तो उसने तो हमारे लिए अच्छा है दो कि उन्होंने मेन जगह पे इंडियन सोल्जर का डोमिनेशन ज़्यादा था। बिसाइड इंग्लैंड वॉज एंगेज इन सेवरल वॉर्स आउटसाइड इंडिया, और अपार्ट फ्रॉम द दूसरा क्या हुआ, वो लोग बहुत बिजी थे, बाहर उनकी बहुत वॉर चल रही थी। कहाँ पे, एक तो पर्शियन वॉर, देन एक क्रीमियन वॉर, देन एक चाइनीज वॉर, ये 3 वॉर में वो लोग उलझे हुए हैं। मेन जगह पे इंडियन ट्रूप्स है, तो उनको लगा ये दिस इज द राइट टाइम टू डू अटैक ऑन ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो वैसा करके हम लोग को एक अंडरस्टूड कि ये गड़बड़, वो लोग ऑलरेडी उलझे हुए यहाँ पे, एंड वी कैन एबल टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। इंडियन सोल्जर हैड द फीलिंग दैट ब्रिटिश वेर इन difficulty and the safety of our Indian empire dependent on them। तो उनको लगा कि अभी इंडियन, वो लोग के सब ट्रूप्स फॉरेन में बिजी है, अभी इंडिया का कंट्रोल हमारी सोल्जर पे है, तो वो लोग कुछ कर नहीं पाएंगे अगर हम उनके ऊपर अटैक करेंगे। तो they were therefore determined to strike at them at a suitable time। तो उन्होंने सोचा अभी एक राइट टाइम आएगा and we could have, मतलब उसके ऊपर हम चढ़ाई कर सकते हैं। पुअर परफॉर्मेंस ऑफ ब्रिटिश ट्रूप, और दूसरा एक फायदा क्या हुआ, जहाँ पे लड़ाई चल रही है वहाँ पे क्या हुआ वो देखो, द ब्रिटिश आर्मी सफर्ड मेजर रिवर्स इन द फर्स्ट अफगान वॉर, अफगान वॉर में हार गए, पहली वॉर हुई, इन द पंजाब वॉर्स एंड द क्रीमियन वॉर, ये तीनों वॉर में वो लोग रिवर्स मतलब वो जीत नहीं पाए। इन 55-56 द संथल ट्राइब्समैन मतलब एक ट्राइब है, वो आदिवासी जात कैसी रहती है, उसका नाम है संथल करके एक नाम है, ठीक है। और बिहार, अभी बिहार झारखंड वहाँ पे एक बंगाल, तो यहाँ पे ना एक ये कास्ट है, बराबर, ट्राइबल कास्ट है। तो उन्होंने क्या सोचा, बंगाल आर्म विद एक्स एंड बोस रोज अप अगेंस्ट द ब्रिटिश, तो उन्होंने चढ़ाई किया ब्रिटिश के ऊपर, मतलब दे आर मेरी क्या बोलते ब्रेव बोल सकते हो, मतलब उन्होंने इनिशिएट किया। बट क्या हुआ, बोस up against the British, temporarily sweeping away the British rule from their area। तो उन्होंने अपने एरिया में जितने ब्रिटिशर्स थे ना उसको तो हटा ही दिया इनिशियली, मतलब उन्होंने फर्स्ट अटैक कर दिया यहाँ पे। दो द ब्रिटिश सप्रेस द संथल अपराइजिंग, लेकिन उन्होंने क्या किया, वापस दे कैन कम बैक, वो आके उनको वापस दबा दिया। द डिजास्टर दे सफर ब्रोक द मीथ, लेकिन क्या हुआ कि हम लोग को अभी तक ऐसा था ना कि हम कभी जीत नहीं पाएंगे ब्रिटिशर्स को, बट ये संथल ग्रुप ने करके दिखाया कि अगर हम यूनिटी करें, हम उसको मतलब ब्रेवनेस दिखाए तो हम उसको जीत सकते हैं। एटलीस्ट उसने भले वापिस हार गए वो लोग, बट अपने माइंड में आ गया एक बार, यस वी कैन एबल टू डिफीट द ब्रिटिशर्स। द डिजास्टर दे सफर ब्रोक द मिथ, हमको ऐसा लगा था कि ब्रिटिश वेर अनविसिबल, वो कभी हम हरा नहीं सकते, वैसा है ब्रिटिशर्स, तो ऐसा नहीं था, एक बार तो हरा दिया संथल ने। ई फर्दर रिवील to Indian soldiers that the British army could be defeated by determined Indian army। देखो लिखा है कि अगर हम डिटर्मिनेशन करें तो हम उसको जीत सकते हैं, वो हमारे मन में एक बार आ गया, then we can able to plan it out, सही टाइम पे अटैक करके जीत सकते हैं। लोअर सैलरी एक और था, the wages of Indian soldiers were inadequate to support their families, पैसा नहीं दे रहे वो लोग सोल्जर को, सोल्जर अगेंस्ट हो गए, जिसको लेके वो इंडिया जीता, फॉरेन कंट्री जीत रहे हैं और वही नाराज है, तो क्या करोगे आप, ठीक है। ऑन द अदर हैंड द ब्रिटिश सोल्जर्स रिसीव मोर देन 8 टाइम्स ऑफ सैलरी ऑफ इंडिया, तो अगर वही मैं तो 5 टाइम्स बोला, अभी मेरा 2000 है तो उसको 16,000 सैलरी है ब्रिटिशर्स को, वैसा इतना ह्यूज गैप, जो कि काम तो सेम ही कर रहे हैं वो लोग। इमीडिएट कॉज पूछा हुआ है, माइंड इट, इमीडिएट कॉज पूछा है किधर, तो मैं देखा था क्या इमीडिएट कॉज, ये रहा, देखो ये रहा, 2-3 मार्क का पूछा है। ब्रीफली एक्सप्लेन द इमीडिएट कॉज ऑफ ग्रेट रिवॉल्ट, 3 मार्क्स 2018। तो देखो पैटर्न, आप देखो पैटर्न से आपको आइडिया आएगा कैसे पूछते हैं, क्या पूछते हैं, बेस्ड ऑन दैट यू कैन एबल टू स्टडी। संधे की तरह पढ़ाई करके कोई लॉजिक नहीं बनेगा, ठीक है। नाउ क्या हुआ लास्ट, 1850 से ब्रिटिश अथॉरिटी डिसाइडेड टू रिप्लेस द ओल्ड फैशन मस्केट
called the brown bass by the new Enfield rifle. तो उनके पास है ना एक राइफल था, गन था, वो उन्होंने बदला, उन्होंने बोला न्यू एनफील्ड राइफल लेके आए वो। हाँ, एनफील्ड राइफल गूगल कर लेना चाहिए। तो पहले ये वाली थी मस्केट करके गन थी, देखना है क्या मस्केट गन, मुझे भी नहीं मालूम। ऐसा टाइप का गन था पहले। सी दिस इज टाइप ऑफ गन, स्टार्टिंग में ऐसा यूज करते थे वो लोग, आपने देखा रहेगा पिक्चर में, ठीक है। और बाद में एनफील्ड क्या था, एनफील्ड सर है ना वो, हाँ सर इसका वो है दूसरा नाम, वो है कार98। हाँ, ये एनफील्ड राइफल है, ये ली एनफील्ड, अभी मुझे भी नहीं पता। ये देखो थोड़ा बदल दिया वो लोगों ने, उसमें वो कार्ट्रिज डालने का था ना, वो उसमें वो आएगा, तो उसमें नया गन लेके आ गए। इट इज वो वाला ना, वो पावर पिक के उससे फैट से बना है। हाँ, फैट से, बरोबर है। नहीं वो हाँ, वो क्या था, गन तो वही है, बट आपको वो निकालना पड़ेगा कार्ट्रिज में और फिर वो डालनी है। तो और सर वो कार्ट्रिज जो पेपर था वो का और पिक के हाँ साथ से मिला। हाँ, मतलब वो आपको मुंह से वो करना पड़ता है, उसको निकालना पड़ेगा, देन यू हैव टू इंसर्ट। तो आपको सर तो हाथ से नहीं निकाल सकते थे क्या, मुंह से निकालना नहीं, पड़ता वो है? ऐसा था, हाँ, वो आपको मुंह से निकाल, इसके लिए तो वो लोग ने बोला कि भाई वो मेरे मुंह में जाएगा तो हमको, तो हम पवित्र है हम तो। The loading process देखो लिखा है, the loading process of Enfield rifle involved bringing the cartridge to the mouth, देखो लिखा है, and biting off, see very clearly mentioned the top greased paper with the teeth। अभी प्रोसेस चाहिए तो गूगल यूट्यूब कर लेना कि कैसे वो करते थे लोडिंग। हाँ, लोड करने के लिए जैसे लोड करने का टाइम वो मुंह में डाल के खींचना पड़ेगा उसको, देन ओनली इट विल गो इनसाइड, सम प्रोसेस मस्ट बी लाइक दैट, बाइट करना पड़ेगा कंपलसरी। तो जनवरी 57 में देयर वाज ए रूमर, तो एक रूमर आया, एक्चुअली था नहीं, बट ये किसी ने रूमर फैला दिया कि भाई देखो बंगाल रेजिमेंट जो था, रेजिमेंट मतलब वो ट्रूप का एक ग्रुप है, वहां पे दैट ग्रीस कार्ट्रिज हैड फैट ऑफ काउ और पी, बोला जो कार्ट्रिज जो आप मुंह में डाल के वो उसको लोड कर रहे हो ना, वो काउ से या पीक से बना हुआ है, उसके फैट से बना है बेसिकली, ऐसा बोला। तो सिपाही बोला अरे हमारा तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, बिकॉज हिंदू के लिए काउ माता के बराबर है और मुस्लिम पीक को हाथ भी नहीं लगाते, तो दोनों धर्म वाले जो थे सोल्जर वो अगेंस्ट हो गए, बोला नहीं नहीं ये हम यूज नहीं करेंगे। तो भी उन्होंने पहले ट्राई किया सप्रेस करने के लिए, क्या किया था, सिपाही वर नाउ कन्विंस्ड दैट इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीस कार्ट्रिज वेर डेलिब्रेट मूव टू डिफाइल हिंदू एंड मुस्लिम रिलीजन, बोला जानबूझ के ब्रिटिशर्स ने इम्प्लीमेंट किया है, ये नया गन लेके आए कि हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाए, ओके, बिकॉज काउ इज सेक्रेड टू हिंदू एंड पिग इज टैबू टू मुस्लिम। तो सो बोथ द हिंदू एंड मुस्लिम सोल्जर रिफ्यूज टू यूज, उन्होंने बोला नहीं नहीं हम यूज नहीं करेंगे भाई, भले हम आपके टीम में है बट वी आर नॉट गोइंग टू यूज दिस, बिकॉज हमारा धर्म सबसे पहले है, चाहिए तो आप मारना है तो मार डालो हम लोग को, वैसा लेवल आ गया, ओके। कार्ट्रिज एंड स्टेज एन अपराइजिंग व्हेन दे वर फोर्स्ड टू यूज देम, और बाद में सब उसके अपोज में हो गए, उन्होंने बहुत सारा किया था, आगे है शायद, बहुत लोगों को क्या किया, मार दिया, बहुत लोगों को ग्रुप से अलग कर दिया, किसी को फांसी पे लटका दिया अगर यूज नहीं कर रहे तो, वैसा बहुत मंगल पांडे को लटकाया था, मंगल पांडे को लटकाया था, बरोबर है, करेक्ट।